Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. And till now we have learned about the variable declaration and variable initialization. उनकी प्रैक्टिस के लिए आप dev C++ डाउनलोड कर लें. ये इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है, तो फ्री डाउनलोड कर लें dev C++. मैं उसको टेक्स्ट भी कर दूंगी आपको नेम के साथ. लेटेस्ट वर्जन जो भी हो 5.11 है मेरे पास, आप भी वही डाउनलोड कर लें. अगर कोई और भी वर्जन अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उसको डाउनलोड करें. और अब जो हम प्रोग्राम्स करेंगे उनको प्रैक्टिकली साथ साथ करके भी देखना होगा. ठीक है, थ्योरी जो हमने पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके, और अब प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट होगा. तो इसके लिए जैसे जैसे हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है. इसलिए अपनी अपनी डिवाइसेस पे आपको dev C++ डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, अब हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आउटपुट और इनपुट को डिस्कस करेंगे. हाउ टू गिव आउटपुट एंड इनपुट इन C++. आपने अभी तक हमने जो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ प्रोग्राम्स देखे, उसमें आपने देखा होगा कि हम सी आउट और सी इन इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे थे. तो उसको अब क्लियर करते हैं दैट व्हाट इज़ सी आउट एंड व्हाट इज़ सी इन. In C++, if we want to give output on the screen, then we have to use the cout object. Cout is actually an object. आप इसको separately use नहीं कर सकते. If you want to use cout or if you want to display anything on the screen, then you have to use the insertion operator with the cout. ये ऑपरेटर आपको सामने एक नज़र आ रहा है. ठीक है, इस ऑपरेटर को हम इंसर्जन ऑपरेटर बोलते हैं. ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है, इसकी डायरेक्शन देखनी है. सी आउट लिखते हैं, उसके फ़ौरन बाद हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो भी आपने प्रिंट करवाना वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं. अब तक के लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट C++ में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यू हैव टू यूज़ द सी आउट ऑब्जेक्ट विद द इंसर्जन ऑपरेटर. एंड दिस सी आउट इज़ एक्चुअली अ रिजर्व्ड वर्ड. इट इज़ अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट. It is the predefined object in the C++ library. So if you are going to use the cout object, that you have to include the IOStream header file in your program. If you are not including the IOStream header file in your program, then and you are using the cout with the insertion operator, then you will find the error. क्योंकि ये जो सी आउट ऑब्जेक्ट है इसकी सारी की सारी डेफिनेशन आपके पास IOStream हेडर फाइल में मौजूद है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू इंक्लूड द IOStream हेडर फाइल एंड देन यू कैन यूज द सी इन ऑब्जेक्ट और सी आउट ऑब्जेक्ट. ठीक है, IOStream एक्चुअली मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट और आउटपुट के लिए जितने भी हमारे पास फंक्शंस होंगे वो किस में डिफाइन किए जाते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, वो होते हैं IOStream हेडर फाइल में. ठीक है, तो जब भी सी आउट या सी इन यूज करना है, यू हैव टू इंक्लूड द IOStream header file in your program first. So here we go with an example of cout object. You can see this is very simple program, and you can say that this is your first program where you can only display hello world. Here is the start of your program. You are including the first header file, that is IOStream. Hashtag include IOStream. As we discussed previously, that hashtag include is a preprocessor directive. What is this? This is a preprocessor directive. It directs the compiler that which header file is going to be added in our program, or how many types of objects are going to included in our program related to this header file. Hashtag include. This is the syntax of writing the preprocessor directive, and it will tell the compiler that IOStream is going to be added in the program. This is the using namespace std. This means that some namespace is added to the program, and now the structure of program is including the integer main and then this bracket. अब हमारा entry point है. This is the entry point of your program. Main is the entry point of your program. All the statements which you are going to be executed must lie in the function main. Main function में ही वो सारी की सारी statements होनी चाहिए जिनको आपने execute करवाना है. And this main is actually a function, so we are putting this parenthesis with it.
अगर आप ये पेरेंथेसिस लगाना भूल जाते हैं तो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं रहेगा और आपको एरर मिलेगा। अगर आप इन सर्कुलर ब्रैकेट्स के अलावा कोई और ब्रैकेट्स लगा देते हैं तब भी मेन फंक्शन आपको एरर देगा, कंपाइलर आपको एरर देगा, ठीक है। इसलिए बेटा ये प्री डिफाइंड वर्ड है, यू हैव टू फॉलो द सिंटेक्स, आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना है। यहाँ पे रिटर्न टाइप INT है, वॉइड भी हो सकती है, किसी में आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो आप इसको जस्ट वॉइड भी कर सकते हैं, VOID, वॉइड। सो हेयर वी आर रिटर्निंग समथिंग, सो INT आपके पास इंटीजर इसकी डेटा टाइप हो जाएगी। दिस इज द स्टार्टिंग ब्रैकेट ऑफ मेन, body of main. If you learned that previously we have discussed that the main function has a body and this is the starting of the body, this is the end of the body. And what is the body? C out, then insertion operator, then you can see double quotes, hello world, and then again double quotes, and this is the semicolon. ये अब सी आउट या आउटपुट लिखने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग आपके पास एज इट इज प्रिंट हो जाए आउटपुट में, तो फिर आपको उनको डबल कोट्स में लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो बच्चे जो नहीं जानते कि आउटपुट कैसे देनी है, तो उसके लिए सी आउट इज अ ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। You have to write the C out first, then you have to put the insertion operator, and then whatever you want to print on the screen, you have to write that after the insertion operator. And then you have to put the semicolon at the end of the line. If you are not putting the semicolon, then there will be error. If you are not putting the insertion operator, then there will be also error. If you are not writing the proper spelling of C out, then there will be also an error. तो ये सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है। C out में किसी भी चीज़ को अपर केस में नहीं करना। All letters must be in lower case as C++ is a case sensitive language. Okay? बाकी स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिखना है, जैसा भी लिखना है आप लिख सकते हैं, बट there must be enclosing double quotes. आपके पास डबल कोट्स होने चाहिए जिसमें आप उस स्ट्रिंग को लिखेंगे। अगर आप स्क्रीन पे कुछ भी एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो डबल कोट्स का यूज करें, और अगर एज इट इज नहीं, उसकी वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करानी है, उसके लिए क्या मेथड है वो भी मैं बताती हूँ। लेकिन उसके लिए जहन में बिठा लें कि वहाँ डबल कोट्स नहीं लगाएंगे हम। डबल कोट्स सिर्फ वहाँ पे लगाएंगे जो आप एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद ये रिटर्न की स्टेटमेंट है एंड देन द क्लोजिंग ऑफ द ब्रैकेट, और ये आपके पास प्रोग्राम क्लोज हो गया। इसमें छोटी छोटी बातें बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। यू पीपल मस्ट नो ईच एंड एवरी लाइन अबाउट द प्रोग्राम, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस प्रोग्राम। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सी आउट। अब इसको हम डेव C++ पे भी करते हैं। ये आपके सामने मैंने डेव C++ का इंटरफेस ओपन किया है। First of all, you people must download the dev C++ from the internet, which is freely available. Then after downloading, you have to execute its exe file. उसके बाद वो आप सेटअप आपके पास आ जाएगा, एक डाउनलोड हो जाएगा आपके पास dev C++ के नाम से, और फिर उसके बाद जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो आपके सामने ये इंटरफेस सबसे पहले आएगा, ठीक है। इस टाइप का एक इंटरफेस होगा। ये आपको dev C++ ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, that is 5.11 version. This is the compiler which we are going to use for the implementation of our C++ programs. First of all, you people must click the file. अब ये इंटरफेस जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें आप जैसे जैसे इसके साथ वर्क करेंगी तो आपको इससे फेमिलियर भी होती जाएंगी। बाकी मैं भी आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। अभी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये जो इंटरफेस है इसमें नीचे कंपाइलेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसमें आपको जब आप कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को तो जो एरर्स होंगी, वार्निंग्स होंगी, वो सब इसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में किस टाइप के कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द फाइल मेन्यू एंड देन यू विल गो टू द न्यू मेन्यू एंड देन सोर्स फाइल में जाएंगे और ओपन कर लेंगे। ये देखें अब आपके सामने एक फाइल आ गई
और अब आप इस पर कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। इस पर आपने जो प्रोग्राम अभी हमने हेलो वर्ल्ड का किया है, हम उसको भी अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये अब जैसे कि फाइल मेन्यू ओपन किया था, उसके बाद न्यू टैब के सिलेक्ट करने के बाद हम सोर्स फाइल में गए थे और उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आई थी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग मैंने इसको राइट डाउन कर दिया है, टाइप कर दिया है वही प्रोग्राम जो कि मैंने आपको पीछे अभी एग्जांपल में डेमोन्स्ट्रेट किया था। अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेव C++ में। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम। हमने देखा वही, हमने हैशटैग इंक्लूड और IOStream ऐड किया यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद मेन स्टार्ट किया, उसकी बॉडी स्टार्ट की और फिर वही हेलो वर्ल्ड लिखा हमने सी आउट के साथ और क्लोज कर दी बॉडी। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये आपको एग्जीक्यूट का एक मेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट के मेन्यू को आप क्लिक करें और इसमें सबसे पहले कंपाइल नज़र आ रहा है आपको, आप कंपाइल को क्लिक करेंगे। अगर आप इस मेन्यू को यूज़ नहीं करना चाह रही तो जस्ट अपने कीबोर्ड से F9 क्लिक कर दें, ठीक है। F9 क्लिक कर देंगे तो कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद फिर आप उसको रन करेंगे। मैं अभी आपको ये कंपाइल करके दिखाती हूँ। ये कंपाइल किया, कंपाइल हुआ और उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगी क्या आपको कोई एरर रिसीव हुआ है। कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है, 0 एरर। इट मीन्स इट इज़ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब ये एग्जीक्यूशन के लिए रेडी। आप फिर एग्जीक्यूट पे जाके क्लिक करें और ये देखें रन का ऑप्शन आ रहा है। अब चाहे तो आप इसको इस मेन्यू से क्लिक कर दें, चाहे F10 क्लिक कर दें, F9 के बाद F10 क्लिक कर दें। अगर आप कंपाइल और रन इकट्ठा करवाना चाह रही हैं तो उसके लिए भी आपके पास देखें ये ऑप्शन है। आपको लहदा नहीं करवाना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन आप सेपरेटली ना करें, आप एक साथ कर लें। उसके लिए अगर आप कीबोर्ड यूज़ करना चाहती हैं तो आप F11 की कमांड यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। सो एज वी हैव कंपाइल्ड द प्रोग्राम ऑलरेडी, सो वी आर गोइंग टू रन इट एंड हियर यू कैन सी दैट हेलो वर्ल्ड इज ऑन द स्क्रीन। हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड जैसा हमने कहा था उसी तरह से राइट डाउन किया हुआ आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब इस हेलो वर्ल्ड की जगह अगर कुछ और भी प्रिंट कराना चाहती हैं तो आप वो भी करवा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अब ये आपको एक और स्टेटमेंट के साथ मैंने आउटपुट दिलवाने की कोशिश की है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड की जगह हमने कर दिया दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो स्ट्रिंग जो भी हो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप इसको वही एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन में इकट्ठा कर देती हूँ। एरर्स आप देख सकते हैं 0 एरर्स है और आपके पास आउटपुट में क्या गया, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सी आउट। इस तरह से सी आउट में आप कुछ भी स्ट्रिंग आउटपुट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल की आउटपुट्स को कैसे हम कैरी कर सकते हैं इसमें। ये एक और प्रोग्राम है जिसमें हमने जो ऑलरेडी वेरिएबल्स को डिस्कस किया उसके बारे में देखेंगे। हियर इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, हियर इज़ द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड विद एंड हेयर इज द आउटपुट। सी आउट मैंने यूज़ किया, फिर देखें एक्स डबल कोट्स में दिया हुआ है, उसके बाद हैज़ वैल्यू डबल कोट्स में दिया हुआ है, लेकिन इस एक्स के ऊपर कोई डबल कोट नहीं है। अब इसमें ज़रा डिफरेंस आपने समझना है। अगर मैंने डबल कोट्स में कुछ भी दिया है इट मीन्स ये एज इट इज़ प्रिंट होगा आपके पास स्क्रीन पे। इट मीन्स एक्स एज इट इज़ आएगा क्योंकि डबल कोट्स में है। उसके बाद आप देखें मैंने दोबारा इंसर्जन ऑपरेटर लगाया है और हैज़ वैल्यू। आप चाहें तो इसको एक ही जगह पे भी कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये आप पैनिक में ना आइएगा, एक्स हैज़ वैल्यू, ठीक है, इस तरह से कर लें आप डबल कोट्स के साथ। और उसके बाद एक्स, सिंपल एक्स मैंने दिया है, इसके ऊपर कोई डबल कोट्स नहीं है। इट मीन्स ये अब एक्स नहीं शो करेगा बल्कि क्या शो करेगा, 10। एक्स के अंदर जो वैल्यू है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। ये देखें, एक्स हैज़ वैल्यू 10, एक्स हैज़ वैल्यू, ये डबल कोट्स में था, ये आप देख सकते हैं एज इट इज प्रिंट हुआ, लेकिन इस एक्स की जगह 10 आ गया। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के तौर पे हमने पास नहीं किया था, डबल कोट्स नहीं है, सिंगल। जब जिसके ऊपर कोई कोट्स ना हो तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, वो वेरिएबल खुद से प्रिंट नहीं होता, ठीक है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके सामने आ गई, एक्स हैज़ वैल्यू एंड देन एक्स की जगह उसकी वैल्यू 10 आ गई, ठीक है।